आप सभी को नमस्कार। It's a pleasure and a privilege to be speaking to you a little bit about our marriage specifically. मुझे बहुत खुशी है कि अपनी मेलिसा और लूक की शादी के बारे में वो हम लोगों के साथ बांट पा रहे हैं। So when Pastor asked us to speak on something, Blesson and I were thinking about what would be best to talk about. जब पास्टर ने हमसे पूछा कि कहा कि हम अपने परिवार की हम अपनी आपसी शादी के बारे में बात करें, तो हमने सोचा कि हम क्या बोलें। And so, just a short story. We've been married now only 5 years. और ये एक छोटी सी कहानी है कि हमारी शादी को भी सिर्फ 5 साल हुए हैं। So we were married June 2011. हमारी शादी जून 2011 में हुई थी। And then within 2 months, we found a very kind of an elderly couple within our church that had been married for 30 years. और शादी के कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही उनको एक बूढ़ा कपल मिला, बूढ़ी दंपति मिली अपनी चर्च में जो 30 साल से विवाहित थे। So we thought we'd only been married 2 months. They've been married 30 years. हमने सोचा कि हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, उनकी शादी को 30 साल हो गए हैं। We need to learn from these people. तो इसलिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। So we asked them, can you meet with us on a regular basis and teach us about your marriage and how to have a healthy long marriage? हमने उनसे कहा कि आप क्या हमें सिखा सकते हैं कि एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने के लिए हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। So 2 months after marriage, until the time we came to India, a little over 2.5 years, weekly we were counseled by this family. शादी के 2 महीने बाद से लेकर 2.5 साल तक, जब तक हम इंडिया आए तब तक हम हर हफ्ते इस बूढ़ी दंपति से मिलते थे और वो हमें बताते थे कैसे हमने अपने जीवन को जीना है। So what we want to talk about just for a few minutes is the benefits of counseling in your marriage. और इसलिए हम कुछ समय सिर्फ किसी से सलाह लेने से क्या फायदा हो सकता है उस बारे में बात करना चाहेंगे। So I'm going to talk about the reasons for counseling, and she's going to talk about what we learned from counseling. मैं बताऊंगा कि किसी से सलाह लेने का क्यों लेनी चाहिए और मेलिसा बताएंगी कि उसका फायदा क्या है। So in Proverbs 11:14, नीति वचन 11:14 में कहा गया है। So Proverbs 11:14. Okay. It says, "Where there is no guidance, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety." नीति वचन 11:14 में लिखा है कि जब कोई सलाह नहीं होती तो लोग गिरते हैं, पर जब बहुत सारी सलाह होती है, सलाह देने वाले होते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। So the first reason for having counseling in your marriage is that it's biblical. तो पहला कारण है हमें सलाह लेनी चाहिए, उसका पहला कारण ये है क्योंकि ये बाइबल के द्वारा कहा गया है। When Melissa and I were first married, we would have fights. जब हमारी शुरू में शादी हुई तो हमारी लड़ाइयाँ होती थी। I didn't have any sisters. I only had my mom, so I didn't know how to live with another lady, a girl in my house. मेरे पास सिर्फ माँ थी और कोई बहन नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि एक लेडी के साथ घर में कैसे रहा जाता है। So all I knew is that I loved her. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। And so when we had talks and sometimes we would start getting angry, we didn't know how to respond to each other. और तो इसलिए हमें कई बार हमें गुस्सा आता था तो पता नहीं चलता था एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। So having a mediator, a different family with us, they began to counsel us of how to talk to each other. तो इसलिए जब हमारे को एक सलाहकार मिले तो हमें उन्होंने ये समझाया कि कैसे एक दूसरे से बात करनी है। So what it does is it provides a mediator for your marriage. तो वो हमारे को एक बीच में आते हैं जो हमें सलाह देते हैं। We met with this family weekly on Tuesdays. हम इस परिवार को हर हफ्ते हर मंगलवार को मिलते थे। So if a problem happened on a Saturday, we would say, okay, let's wait and talk about it on Tuesday. तो इसलिए अगर कोई शनिवार को कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम कहते थे चलो इंतजार करते हैं, मंगलवार को इस बारे में बात करेंगे। And then the family would tell us who's right, who's wrong, or how. It's not a matter of right or wrong, but it's a matter of how do we move together with our problems forward. तो ये तब हमें पता चलता था कौन सही है कौन गलत है, बट सही गलत की बात नहीं थी, बट ये था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। So by doing that, it laid the third reason. The first is biblical. The second is that it provides a mediator. But the third is now it lays a good foundation for our marriage. तो पहला कारण है क्योंकि ये बाइबल के द्वारा है, दूसरा ये कि हमारे को सलाह देने के लिए कोई मिल जाता है, और तीसरा ये कि एक अच्छी नींव
बनाता है. Because those counselors taught us early how to respond to each other. क्योंकि उन काउंसलर्स ने, उन सलाहकारों ने हमें शुरुआत में ही बताया कि एक दूसरे को कैसे संभालना है. Okay. The fourth is that it's not a weakness to have counseling in your life. और चौथी बात ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं है कि हम किसी से सलाह लेते हैं. I'm not sure about the Indian culture, but in America, if you have to go to counseling, most people think, well, you have a lot of problems. यहाँ इंडिया में एक ऐसा है, पता नहीं, बट अमेरिका में ऐसा सोचा जाता है कि अगर आप किसी सलाहकार के पास जा रहे हैं तो आपको शायद कोई मानसिक रूप से परेशानी है. But what we say is that counseling is not a weakness, but it is an investment in your marriage. पर हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि काउंसलिंग कोई कमजोरी नहीं है, बट एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूंजी जमा करते हैं. And then the last one is it gives you time to work on your marriage together, to fight together. और आखिरी बात ये है कि ये इकट्ठे अपने शादी को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रोवाइड करती है. So I don't know if you know anything about sports, but if you want to get better, you need to have a coach. तो जिस तरह से खेलों में होता है कि अच्छा होने के लिए आपको एक कोच की जरूरत होती है. So he tells you what you're doing. He can see this is right or this is wrong. तो कोच दूर से देख के बता सकता है कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो. So having a counselor in your life becomes like a coach for marriage. So काउंसलर या एक सलाहकार होने से वो हमारे जीवन का एक कोच बन जाता है. Okay, so here Melissa's going to talk about what we actually learned. तो मेलिसा बताएंगे हमने सीखा क्या. There were a lot of things that we learned from our mentors, counselors. हमने अपने सलाहकारों से बहुत सारी बातें सीखी. But these are some of the most helpful things that we learned. पर ये सबसे ज़्यादा हमें लाभ पहुंचाने वाली बातें हैं जो हमने सीखी. So the man, he would always say, hurting people hurt people. कहा जाता है कि जो लोग खुद जिनको चोट पहुंची होती है वही दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं. So if we think if our spouse hurts us, stop and think, what might be hurting them? Did I do something, or is there something else that's hurting them that's causing this? तो जब अगर हमारा साथी हमें चोट पहुंचाता है तो हमें सोचना चाहिए कि वो हमें चोट क्यों पहुंचा रहा है. क्या ऐसा मेरा कोई कार्य है जिसकी वजह से उसे चोट पहुंची है और बदले में वो मुझे चोट पहुंचा रहा है. The second was, don't read each other's mail. दूसरी बात है, एक दूसरे की ईमेल्स मत पढ़ो. This means in the Bible there is, the Bible is a letter to us from God. बाइबल जो है वो परमेश्वर का एक चिट्ठी है हमारे लिए. And in it says what the husband should be doing and what the wife should be doing. और उसमें लिखा हुआ है कि पति को क्या करना चाहिए और पत्नी को क्या करना चाहिए. So our focus needs to be on focusing on what God has told us to do. और तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें क्या करना है. And don't focus on how well your spouse is following their letter from God. और इसलिए आप इस चीज पे फोकस अपना दृष्टि मत रखिए कि आपका साथी किस तरह से परमेश्वर की चिट्ठी को पढ़ रहा है. और the other one was trying to solve all your conflict before you go to sleep. और तीसरी बात ये है कि कोई भी लड़ाई हुई है वो सोने से पहले उन सारी लड़ाइयों को खत्म कर दीजिए. And that's a biblical concept, to not go to sleep angry. और ये भी बाइबल में लिखा है कि सूरज ना ढलने दीजिए अगर आप में अंदर गुस्सा है. We also learned that every person has different ways of receiving love, of feeling loved. और हमने ये भी सीखा कि हर इंसान का अलग तरीका होता है प्यार को पाने का. Different love languages are gifts. अलग-अलग प्यार की भाषा होती है. किसी के लिए गिफ्ट होती है. Quality time. किसी के लिए होता है कि एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया जाए. Words of affirmation. और या किसी के लिए हो सकता है कि आप उन्हें तसल्ली या उन्हें दोबारा से कंफर्म करें कि वो उनके साथ हैं. Physical touch. या फिर कभी आप उनको टच करें. Or acts of service. या फिर आप उनके लिए सर्विस करें, उनके लिए सेवा भाव रखें. So learn what your spouse's love language is. तो आप सीखें कि आपके साथी को क्या पसंद है. And try to love them in that way. और उसको उसी तरीके से प्यार करने की कोशिश करें. And if you know your love language, clue them in. और अगर आपको मालूम है कि आपको क्या पसंद है तो आप उन्हें बता सकते हैं. Thank you. One more, sorry, one more. एक और है. And then we learn to think about marriage as a spiritual warfare. और हमको ये भी सीखना है कि जो शादी है वो एक आत्मिक लड़ाई है.
The goal of marriage is to honor the Lord. शादी का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी तारीफ, उसकी इज्जत करना है. And to demonstrate that type of grace in loving someone that hasn't earned your love. और जिस तरह से परमेश्वर के प्यार को परमेश्वर ने हमें वो दिया है, उसी तरह से हमने भी एक दूसरे को उसी तरह से प्यार करना है जैसे परमेश्वर ने हमें करा है, चाहे डिजर्व ना भी करते हो. So because of this, Satan is always going to try to cause disunity in your marriage. इसलिए जो शैतान है वो हमेशा आपके वैवाहिक जीवन में आपकी ताकत को खत्म करने की, आपके एका को खत्म करने की कोशिश करेगा. And so for you, as a wife or a husband, you have to depend on God's empowerment to love your spouse. तो इसलिए आपको परमेश्वर पे आश्रित रहना है कि वो आपको शक्ति दे ताकि आप अपने साथी को प्यार कर सकें.